Hi everyone, welcome to The Shade That Color. My name is Gagan and I hope you all are doing really well. This video is part 3 of the Nainital series and I'm going to take you through all the lakes of Nainital that we visited back in March 21. I'll be sharing a brief history about the lakes as well, so stay tuned and watch till the end. If you haven't seen part 2 of the Nainital series where we stayed in these beautiful cottages of Haryal 360 in Pangot, you can check that video later. I'll put the link in the description box below. Checking out from Haryal, we headed straight to Nainital for taking a quick munch and also to sit down and decide our plan for the day. We found this tiny and very cozy cafe called as Sims Cafe. This place has the perfect cafe vibes with ambient music, lake view, books to read and of course great food. I surely got what I wanted. So Sims Cafe is definitely TSDC recommendation. By this time we had decided that we will go and explore all the lakes of Nainital, and the first one on our list was Naukuchia Tal. But before going there, we booked our stay for the night at Bhimtal Inn guest house and dropped off our luggage in the room. The distance between Nainital and Bhimtal is of 24 kilometers. We took the room on the spot and managed to negotiate the price for a night at 1200. And I must say that the room was exceptionally clean and well kept. I totally loved this place. The variety of birds that I spotted from the room's balcony next morning was icing on the cake. I cannot recommend enough this place. If given a chance, I would go back and stay there again. The drive to Naukuchia Tal from Bhimtal covers a distance of 7 kilometers and it's mostly pleasant. Upon reaching Naukuchia Tal, we first spotted the less popular adjoining lake, Kamal Tal. Right now we are at Kamal Tal, which is right adjacent to the Naukuchia Tal, the famous Naukuchia Tal, and Kamal Tal थोड़ा सा कम popular है, कम famous है, mostly because ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, but इसका relevance क्या है? As the name suggests, यहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं if you come during the right months, and those months would be ideally from the month of June to September. और यहाँ पे काफ़ी सारे eating options भी हैं around this lake. एक का तो नाम एकदम लोटस विस्टा ही है, विद द नेम ऑफ लोटस विस्टा, और एक और कैफ़े है विच इज़ कर्नल्स कैफ़े, विच इज़ वो भी लेक के सामने ही है. सो बोथ ऑफ देम लुक क्वाइट गुड ईटरीज, सो यू कैन कम एंड चेक इट आउट. इट्स अ गुड लेक. एज यू नो, हम इस वीडियो में नैनीताल की सारी लेक्स को कवर कर रहे हैं और उसी में से एक लेक है नौकुचिया ताल. एज द नेम सजेस्ट, नौकुचिया ताल इज द लेक ऑफ 9 पॉइंट्स and it is considered to be one of the deepest lakes of Nainital, with the depth of the lake going up to around 175 feet. Now, one can enjoy a lot of recreational activities here, from zorbing to kayaking to boating to zip lining. So right now, I am going to try kayaking. ठीक है, आपको आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना है, बोलना भी है. ठीक है. एक बार लेफ्ट मारो, एक बार राइट मारो. आप बोलोगे लेफ्ट तो मैम सर भी लेफ्ट के मारेंगे. अब आप राइट बोलोगे तो राइट सर भी मारेंगे. और पलटेगी तो आप उतार लेने आ जाओगे हमें, है ना? हाँ बस ठीक है. और अभी आप राइट से शुरू करें. राइट से ओनली इस राइट. फिर राइट ही करें. अभी ओनली राइट. लेफ्ट में मत मार. बहुत बढ़िया. आराम से प्यार, जितना प्यार से बोट चलाओगे उतनी प्यार से बोट चलेगी. अरे ये लेफ्ट मारने पे राइट जाती है ना, तू जोर से मार, तेरी साइड से वहाँ जानी है. लेफ्ट राइट मार. लेफ्ट मार.
क्यों? हाँ? राइट मार नालायक। पट्टू वापस जाना है इसको इतनी जल्दी। इनको टाइम से कोई लेन देना नहीं है, तो बस पैसे से लेन देना है, कौन कितने पैसे का। तो सारी मेहनत तो हम ही कर रहे हैं, भैया तो वहाँ खड़ा हुआ है। हाँ हाँ अब राइट कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट। देखो अब सीधी तो अब चलने लगी है, स्टॉप कर दी ना फिर नहीं चलनी हमसे। ये बोट पे क्या लग रहा है? ये चप्पू लग रहा है मेरा। राइट राइट मार। Oh God, I want to go back. Please, मुझे नहीं करना। मुझे वापस जाना प्लीज। प्लीज हाथ का जाना चल। देख रहे क्या मस्त बोर्ड लगाई मैंने, देख रहे तो एकदम परफेक्ट बोर्ड लगी है। हाँ चल चल, थैंक यू भैया। You can watch the full video of our fun kayaking experience. I'll be publishing that video here on Wednesday and I'm sure आपको वो वाली पूरी footage देखने में बहुत मज़ा आएगा। अभी हम कायाकिंग करके आए, इट वाज फन, इट वाज रियली गुड, बट मैं थोड़ी सी कम एडवेंचरस हूँ। आई वुड से दैट कि मैं ट्राई तो कर लेती हूँ बट मैं फिर बहुत जल्दी आई एम लाइक ओके बस हो गया, ट्राई हो गया, ख़त्म करो इसको जल्दी से। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैंने जल्दी छोड़ दिया। देव ने थोड़ा 5-10 मिनट अकेले एक्स्ट्रा किया एंड वी पेड टोटल 300 फॉर द एक्सपीरियंस। भैया वाज सेइंग 300 पर पर्सन फॉर 40 to 50 मिनट्स। हमने कहा हमें 2 लोगों को जाना है और हमें कम टाइम के लिए करना है, वी डोंट वांट 40-50 मिनट्स, हमें आधा घंटा दे दो और 300 रुपये में दोनों का कर दो। भैया ने पहले थोड़ा सा मना किया बट देन मान गया। सो इट वाज वर्थ इट। 300 कायाकिंग बोथ ऑफ अस, हाफ एन आवर, गुड, एंजॉयड इट, वाज फन, कुछ नया ट्राई किया, मज़ा आया। After Nokuchia Tal, our initial plan was to visit Sat Tal, but due to sunset already happening, we decided to head back to Bhim Tal, where we had our stay for the night. On our way back, we noticed some paragliding activity also happening there, so that adds up as another thing that one can try there. Nokuchia Tal also has staying options, so you can make your choice wherever you want to stay. Jai Bajrangbali. Such a beautiful statue of Hanuman ji. Loving it. So, abhi we just had our dinner and very tasty dinner, Indian khana proper. At this, I'll just show you. The Hira's Family Restaurant, Indian, Chinese, Veg, Non-Veg and Tandoor. ये छोटा सा लोकल रेस्टोरेंट है, ये लोकल मार्केट पे ही है भीमताल की। तो जहाँ पे हम रुके हैं भीमताल इन होम स्टे पे हम रुके हैं, वहाँ पे मील्स नहीं है। उन्होंने बोला आप मार्केट से जाके खाया ना, हम खाना नहीं खिलाते। हमने कहा चलो ठीक है खा लेंगे। तो हमने उन्हीं से पूछा यहाँ पे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, तो उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया, लोकल रेस्टोरेंट है यहाँ का, बहुत बढ़िया खाना था, बहुत टेस्टी लगा मुझे। सो यू कैन ट्राई हैविंग एनी ऑफ योर मील हियर, द हीरा's Family Restaurant, highly recommended. Next day was the festival of Holi, so we ended our day by doing some color shopping. अरे 40 नंबर Next morning, we started our lake's exploration journey with the biggest in size lake of Nainital, and that is Bhimtal. कहा जाता है कि एक बार पांडव यहाँ से गुजर रहे थे और अचानक से द्रौपदी को लगी प्यास। आसपास पीने का पानी ना मिलने पर भीम ने अपनी गदा उठाई और धरती पे मारी।
एंड कॉन्सिक्वेंटली वहाँ से पानी ओरिजिनेट हो गया। उसी के बेसिस पे इस ताल को भीमताल के नाम से जाने जाना लगा। राइट नाउ वी आर एट भीमताल लेक और अभी बज रहे होंगे सुबह के अराउंड 7:45 7:30 और आज होली भी है, सो हैप्पी होली। हम अभी होली खेलेंगे थोड़ी देर बाद। एंड यहाँ पे भी अभी तक हम जैसे नौकुचिया ताल गए, यहाँ पे भी बोटिंग होती है और जॉर्बिंग होती है। आई सॉ द बॉल येस्टरडे। आप यहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटीज़ इन्जॉय कर सकते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टे ऑप्शंस, यहाँ पे बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं लेक के आसपास भी और लेक से थोड़ा विद इन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर्स ऑल्सो। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि जैसे हम भी भीमताल में ही स्टे कर रहे हैं एंड टुडे आई वोक अप टू द साउंड ऑफ दीज चर्पिंग बर्ड्स, तो बहुत ही अच्छा लगा था। एंड मुझे बर्ड्स देखने को भी मिली, लाइक लिटरली आई शॉट अ लॉट ऑफ बर्ड्स टुडे इन द मॉर्निंग। तो बर्ड वॉचर्स के लिए अगेन जैसे पंगोट है वैसे भीमताल भी बहुत ही अच्छी जगह है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड पूरा का पूरा ही बर्ड वॉचर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलती है और बर्ड्स की ची ची सुबह सुबह शुरू हो जाती है और चलती ही रहती है। So do visit this place, it's very nice. After Bhimtal, we headed towards Sattal, which is at a distance of 14 kilometers. To avoid any confusion, let me tell you that Sattal is a cluster of 7 lakes which are mysteriously interconnected with each other. Ramtal, Sitatal, लक्ष्मण ताल, भरत ताल, सूखा ताल जिसे पूर्णा ताल भी कहा जाता है, नल दमयंती ताल और गरुड़ ताल जिसे पन्ना ताल के नाम से भी जाना जाता है। राइट नाउ वी रीच्ड नल दमयंती ताल which is a part of the Sattal. Sattal basically is a cluster of mysteriously interconnected 7 lakes और उसमें से एक है नल दमयंती ताल जो अभी एग्जैक्टली हमें दिख रही है नीचे। So right now we are at Ram, Sita and Lakshman Tal or it is set amidst these gorgeous forest of pine and oak trees. मतलब इतनी सुंदर जगह है ना, जो पूरी वॉक है, लाइक अभी हम यहाँ से वॉक करके आए हैं, इतना सुंदर सा ये पाथ है, रोड है, जो भी है, I don't know what to call it, but it's so beautiful, so quiet and so nice. मतलब you are literally in the nature यहाँ पर आकर। राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ सीता ताल, उसमें हम बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं और ये 7 तालों में से एक ताल है और एक्चुअली राम लक्ष्मण सीता ताल ये तीनों ताले इकट्ठे ही हैं, दे आर जस्ट सेपरेटेड बाय सम कॉर्नर्स। तो यहाँ ये जो ताल है, तालों के ऊपर ही टॉप पे है गांव जिसका नाम है सूर्या गांव और जितने भी यहाँ पे मतलब भैया, हमारे बोट वाले भैया बता रहे हैं कि जो बोट चप्पू चलाने वाले भैया आते हैं वो उसी गांव से आते हैं एंड ऑल्सो उस गांव से बहुत ही अच्छा व्यू भी दिखता है इस पूरी लेक का। हाय देवी। One thing that I would like to mention about this Ram Tal, Lakshman Tal, Sita Tal is that
ये एकदम फॉरेस्ट के बीच में है ये जो लेक्स है ना. एंड व्हेन यू सी नैनीताल, भीमताल एंड द अदर नौकुचिया ताल ऑल्सो, उनके आसपास फिर भी आपको थोड़ा अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है. एकदम से छाया आ गई है. वाओ, सो प्लेजेंट. ये एकदम फॉरेस्ट के बीच में सेटअप है. आई जस्ट शो यू. सी, वी आर राइट इन द मिडल ऑफ ए फॉरेस्ट. और ये ताल है यहाँ पर. तो इट्स क्वाइट अनटच्ड एंड मोस्टली इन इट्स नेचुरल फॉर्म. और एकदम तालाब के बीच में यू कैन सी लाइक पेड़ गिरे हुए हैं, पेड़ों की शाखाएं दिख रही हैं एंड रॉक्स दिख रहे हैं नीचे. तो बहुत सुंदर है. आई थिंक इट्स वर्थ इट. यू शुड डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई द बोट राइड. Is it coming? My hand. The water is crystal clear. People chilling here. दिस इज सूखा ताल और पूर्णा ताल. वहाँ पर है हमारी राम सीता लक्ष्मण ताल. और इधर राइट साइड पे अगर हम देखते हैं, ये हमारी सूखा ताल. As you can see, I'm all colorful right now because I have played my share of Holi. Now we are standing at the busiest lakes of Nainital, which is the main Nainital Lake or the Naini Lake. Talk about इसका नाम नैनीताल लेक क्यों है? दैट्स बिकॉज इसका जो शेप है वो एक आई का शेप है. और अगर आप ऊपर से जाके देखो तो कभी कभी ये मैंगो शेप का भी लगता है. तो इसीलिए इसका नाम नैनी लेक है. सती देवी की यहाँ पर आँख आके गिरी थी और इसीलिए यहाँ पर नैनी लेक बन गई, नैनीताल लेक बन गया. यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ. इनफ ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ऑप्शन है. टोटली कमर्शलाइज्ड एरिया है. एक और बात है, मंदिर के बगल में ही गुरुद्वारा भी है और एक मस्जिद भी है. सो दैट्स अ रियली गुड अमालगमेशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स कमिंग टुगेदर. नैनीताल लेक के पास में ही विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स यू कैन रीच अ पॉइंट जहाँ से आप नैनी पीक यानी कि चीना पीक उसको बोलते हैं, उसका ट्रैक कर सकते हैं. दैट इज़ द हाइएस्ट पॉइंट और द हाइएस्ट पीक ऑफ the whole Nainital.
यहाँ पे हिमालयन व्यू पॉइंट भी है, स्नो व्यूइंग पॉइंट भी है। हिमालयन दर्शन पॉइंट से आपको पूरी हिमालयन रेंजेस का व्यू दिखता है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी डन हियर, यू कैन डेफिनेटली कम हियर। और कई लोग तो आप में से ऑलरेडी यहाँ पर आ भी चुके होंगे। What are you thinking, miss? मैं ये सोच रही हूँ कि गाय भैंसे अब कहाँ जाके नहा रही होंगी। क्यों? So in case you are wondering ये मैं क्या सोच रही हूँ, well I'm absolutely thinking the right thing because ये जगह जो आप अपने सामने देख रहे हैं which is सरिया ताल, also known as the सरिता ताल, ये पहले एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये था सड़िया ताल, मतलब सड़ा हुआ पानी जहाँ गाय भैंसे एक्चुअली में नहाया करती थी। So then क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस लेक को डेवलप करने की सोची और इसे एक सुंदर सी लेक बना दिया गया। जी हाँ, सरिया ताल इज़ एक्चुअली एन आर्टिफिशियल लेक, ये नेचुरल लेक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं जैसे कि सब लोग कर रहे हैं। ईटिंग ऑप्शंस आर देयर, व्यूज़ आर गुड, सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट सरिया ताल। So you can just come here, enjoy the boat ride, have some Maggie and enjoy a cup of tea here. Boat riding charges are like the boat for 2 people they are saying 100 rupees और 4 लोगों वाली बोट के चार्जेस है 200 rupees। टाइम लिमिट एज सच नहीं है, पैडल बोट्स है। कम एंड हैव फन। So that what you see below is the खुरपा ताल। अभी हम वहाँ नीचे जा रहे हैं but we are getting a good view from here. So guys, this is Khurpa Tal. View from Khurpa Tal Lake view. Very beautiful. मैंने गूगल किया था पंगोट के बारे में, तो पंगोट की जो एक इमेज शो हो रही थी, आई एम सो श्योर कि यही फोटो शो हो रही थी, विच इज एक्चुअली खुरपा ताल, नॉट रियली पंगोट। दिस इज खुरपा ताल। रीच्ड नियर द लेक, अभी थोड़ा और नीचे उतरेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे ना कुछ एग्जैक्ट रास्ता बना नहीं हुआ, यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज stairs that come. We're just spotting a fish in Khurpa Tal. Okay, now this is the last lake that we are visiting today on our way to Delhi. But जब आप दिल्ली से इधर आ रहे होंगे तो नैनीताल की ये पहली लेक है जो आपके रास्ते में पड़ेगी। To be very honest, ये लेक काफ़ी आइसोलेटेड सी है। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं बना हुआ है नीचे जाने का, और ये चील उड़ता हुआ, वाह। As you can see, ये लेक घोड़े के खुर की तरह दिखती है, इसलिए इसे खुरपा ताल के नाम से जाना जाता है। So that's it from today's video. I hope you enjoyed it. Please hit the like button if you did. Comment on my video, share it with your friends and family, subscribe to the channel, hit the bell icon. I'll see you super soon from some other place with a better non-colored face. Okay, bye.